यस, वी वर डूइंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। याद है क्या फॉर्मूला मोशनल ईएमएफ का हमने कल डिराइव किया? मोशनल ईएमएफ, यशिका, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोशनल ईएमएफ? वी डिराइव्ड द एक्सप्रेशन यस्टरडे। यस यशिका, इट वाज बीएलवी। हाँ बोलो। EMF equals to LV. व्हाट? EMF equals to LVB. हाँ, BLV, मोशनल ईएमएफ इज BLV। ठीक है, याद रखना। और कौन सा फॉर्मूला? फैराडेज फॉर्मूला क्या है ईएमएफ का? फैराडेज लॉ से ईएमएफ का क्या फॉर्मूला है? विदिशा, यू टेल मी। विदिशा, यस, विदिशा, व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज माइनस डी फाइव बाई डी टी। बेसिक फॉर्मूला तो ईएमएफ का वही है ना, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। एक और फॉर्मूला नोट करिए, इफ देयर इज अ साइकिल स्पोक फॉर एग्जांपल, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, then what is the EMF between center and surface of the spoke? If the length of the spoke is L, then EMF between rim of the wheel and center of the wheel will be given by another formula. उसको भी नोट कर लीजिए, directly we can use in numericals, half BL square omega. If the wheel is rotating with angular speed omega, then the formula will be half BL square omega, half BL omega square. ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। So note it down. Exercise में भी हमारा क्वेश्चन है based on this formula. Now the question is, if we are having suppose 10 cycle spokes, if we are having 10 cycle spokes, ये 6 हो गए, 7, 8, 10 हो गए, है ना? Suppose we are having 10 cycle spokes and EMF across each is half BL omega square. What will be the EMF across the whole wheel consisting of 10 spokes? Will it be 5 BL omega square? Will it be 10 into half BL omega square? Will it be 5 BL omega square? Yes, Shivam. Shivam, would you like to tell? Yes. It will be 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा, नहीं होगा। ये नोट कर लीजिए, we are having more number of spokes, even then the EMF will remain half BL square omega square only, because these are connected in parallel, and in parallel EMFs don't get added up. So please write this conceptual question. Write down this conceptual question. The EMF between center and rim of the wheel, EMF between center and rim of the wheel is half BL omega square. Half BL omega square. If the cycle wheel contains 10 spokes, if the cycle wheel contains 10 spokes, will the total EMF be 5 BL omega square? If the cycle wheel contains 10 spokes, will the induced total EMF be 5 BL omega square? No, it won't be, because all the spokes have been connected in parallel, and in parallel EMFs don't get added up. तो पूरे व्हील की भी हाफ BL omega square ही रहेगी. So I hope you have noted down this formula also. Now we are going to start with next topic, eddy currents. Eddy currents, also called Foucault currents. Also called Foucault currents. Named after the inventor. Foucault ने इनको डिस्कवर किया था, so that's why they are named after him. Foucault currents. Now what are eddy currents? When the induced currents are produced in the metals. कब produce होती है induced current?
when the magnetic flux linked with the metal will change, then induced current will be produced in it. और मेटल के लिए उस इंड्यूस करंट को नेम दिया जाता है एडी करंट. ठीक है, तो लिखिए डेफिनेशन एडी करंट्स की. द इंड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड इन मेटल्स, the induced currents produced in metals when magnetic flux linked with the metal changes. When magnetic flux linked with the metal changes. All right. So induced currents produced in metals when the magnetic flux linked with the metal changes. That is called eddy current. Right. Other name is Foucault currents. Now eddy currents, they will be having opposing nature. जब भी eddy current produce हो जाए, because induced current, you know, that is opposing in nature. Induced current selfish in nature होता है. It opposes the cause producing it. अपने ही cause को oppose करता है. हमने Lenz's law में देखा. ठीक है. तो मैग्नेट के आने की वजह से लाइक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ था, ये उसी की मोशन को अपोज कर देती. सो एडी करंट्स आर आल्सो हैविंग अपोजिंग नेचर, राइट. सो फॉर एग्जांपल, टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर, लेट अस टेक अ कॉपर प्लेट दैट हैज बीन सस्पेंडेड इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं. When we will set it into oscillation, थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दें, तो it will instantly come to rest. ये बहुत जल्दी रेस्ट पे आ जाएगा, because copper plate was metal and because of change in magnetic flux, magnetic field में coil की motion से क्या हो रहा है, उसमें eddy currents produce हो जाएंगे, तो एकदम से उसको stop कर देंगे, तो ये प्लेट एकदम से रेस्ट पे आ जाएगी. ठीक है, ये एकदम से रेस्ट पे आ जाएगी. If we want to make the plate oscillating for a long period of time, what is your suggestion? What we can do? How can we minimize eddy current? Yes, any one of you. हम minimize कैसे कर सकते हैं? Any suggestion? Yes, students, any suggestion? You can think about it. Current can be minimized. How? अगर हम इसका path increase कर दें तो minimize हो जाएगा. So if we use a slotted copper plate now, if we cut slots in it, then the path of current will be increased and hence it will be minimized. Path length increase कर दी, ठीक है. Resistance is directly proportional to length of path. Resistance increase हो गया, current minimize हो गया. तो अब ये जो slotted copper plate है, it will oscillate for a longer period of time. This slotted copper plate will oscillate for a longer period of time. Is that okay? तो eddy currents का nature आपको यहाँ से पता चल गया होगा. And when it retards, when magnetic field is changed, this retarding effect of eddy current is called electromagnetic damping. Note करिए. What is electromagnetic damping? Electromagnetic damping लिखिए क्या होती है? The retarding effect produced by eddy currents. The retarding effect produced by eddy currents, मतलब किसी चीज को स्लो डाउन अगर कर रहा है तो that is called electromagnetic damping. EM मतलब electromagnetic damping. हाँ जी, हाँ, स्लॉटेड ज्यादा देर तक ऑसिलेट कर. मैग्नेटिक फील्ड में रखा हमने इसको. अगर स्लॉट्स कट गए हैं तो ज्यादा देर ऑसिलेट करेगा, अगर पूरी प्लेट है तो कम. मतलब जब पहले हमने कॉपर प्लेट ली थी एकदम से रुक गई, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. अब तो डैम्पिंग कम हो गई ना स्लॉटेड में. हाँ, स्लॉटेड में हमने कम कर दी. ओके, सो लेट अस सी where the eddy currents it is not having importance. So there are both advantages and disadvantages of eddy currents.
So let us see where the eddy currents are undesirable. कहाँ पे हमें eddy currents नहीं चाहिए, ठीक है? For example, in case of galvanometers हमें ये नहीं चाहिए, right? तो उसको हम कहते हैं dead beat galvanometers. डिसएडवांटेजेस में पहले आप लिख लीजिए, ये उसमें नहीं चाहिए हमें ट्रांसफॉर्मर कोर में. So that's why transformer core is laminated. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि why is the core of a transformer laminated? लैमिनेटेड का इट डजंट मीन कि जैसे हम सर्टिफिकेट को लैमिनेट करते हैं वो लैमिनेशन नहीं है. तो क्वेश्चन लिखिए, why is the core of a transformer laminated? So you will write core of a transformer is laminated to reduce the effect of eddy currents. Core of a transformer is laminated to reduce the effect of eddy currents. ये रोकता है CM डैम्पिंग. फिनोमिनन होने में नहीं, कोई चीज अगर मूव कर रही है इसको रोक देते, अपोज करता है मोशन. हाँ, इन मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो फ्लक्स चेंज हो जाएगी. एडी करंट प्रोड्यूस होते ही वो उसकी मोशन को रिटार्ड करता है, ठीक है. अब जैसे ट्रांसफॉर्मर कोर इज लैमिनेटेड. लैमिनेटेड मींस in place of using single solid piece of iron, thin sheets of iron are joined in parallel. Thin sheets of iron are joined in parallel with the help of some insulating varnish. आपने देखा होगा स्ट्रीट्स में जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनमें ये पैरेलल आयरन की प्लेट्स लगी होती हैं. इन प्लेस ऑफ टेकिंग सॉलिड सिंगल क्यूब ऑफ आयरन दे यूज लैमिनेटेड आयरन कोर. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय लैमिनेशन. तो इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि when we join thin plates of iron in parallel with the help of insulating varnish, this is called lamination of transformer core. Now why it is laminated? It is laminated to reduce the effect of eddy current, to minimize eddy currents because currents have heating effect. तो अगर large eddy currents produce हो जाएंगे single piece में तो large ही होंगे. तो अगर उसमें large eddy currents produce होंगे तो they will produce large amount of heat also. That may burst the core. आप तो देखते ही हो ट्रांसफॉर्मर कोर जो कितने लाइबल टू, उसमें हीट लॉस बिल्कुल भी हम टॉलरेट नहीं कर सकते. तो उसमें हीट लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है एज फार एज पॉसिबल. सो वन वेरी कॉमन मेथड ऑफ डूइंग दैट इज रिड्यूसिंग और मिनिमाइजिंग एडी करंट. ठीक है, तो इससे क्या होता है. अब हाउ आर द एडी करंट्स रिड्यूस दिस वे. ऐसे सिंगल ऐसे पैरेलल में शीट्स लेने से कैसे मिनिमाइज हो जाएंगे. एडी करंट्स दे विल रिमेन कन्फाइंड विद इन ईच शीट. नाउ दे विल नॉट गेट एडेड अप एंड हेंस दे आर मिनिमाइज्ड. अब क्या होगा कि दे विल रिमेन कन्फाइंड विद इन ईच शीट. हर शीट में अलग अलग प्रोड्यूस होंगे एंड दे विल नॉट गेट एडेड अप एंड हेंस दे विल गेट मिनिमाइज्ड. तो हाउ एंड व्हाई बोथ you should be knowing. How and why are eddy currents minimized in a transformer core? सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या है, हमें वो इतनी हीट प्रोड्यूस करेंगे जो हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते. तो हम एडी करंट्स को मिनिमाइज करने के लिए सिंगल जो प्लेट्स हैं उनको पैरेलल में लगा देते हैं. अब होगा क्या, now the eddy currents they will remain confined within each lamina, within each sheet. These eddy currents won't get added up and hence they will get minimized. तो ये आपकी पहली एप्लीकेशन है वेयर वी डोंट वांट एडी करंट्स. हम नहीं चाहते कि यहाँ पे एडी करंट्स हों. नाउ लेट अस सी सम एडवांटेजेस जहाँ पे हम चाहते हैं कि एडी करंट्स प्रोड्यूस हों. तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग, कहाँ पे हम चाहते हैं कि हों एडी करंट्स, कहाँ पे मोशन को सच में रोक दे. तो उसका एग्जाम्पल है डेड बीट गैल्वेनोमीटर. डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स. अब क्या होता है गैल्वेनोमीटर में अगर हम स्विच ऑफ करें, वी वांट की कॉइल एकदम से रेस्ट पे आ जाए, वो फैन की तरह ऐसे ऐसे ना होता रहे.
ठीक है, मोमेंटम के गेंड की वजह से ऐसे से ना करे व्हेन वी स्विच ऑफ द करंट. So there what is done, eddy currents are introduced to oppose the motion of coil as soon as current is switched off. स्विच ऑफ करने पे भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होंगे ना, ये स्विच ऑन और ऑफ दोनों के टाइम पे होती है. तो स्विच ऑफ करेंगे तो क्या किया जाता है, द कॉइल इज बाउंड ओवर मेटालिक फ्रेम. द कॉइल इज बाउंड ओवर अ मेटालिक फ्रेम. सो व्हेन वी स्विच ऑफ द करंट, eddy currents are produced in that metal frame. Eddy currents उसमें जो प्रोड्यूस हो गए, they will retard the motion of coil instantly by electromagnetic damping, and this way the coil will come to rest as soon as current is switched off. Such a galvanometer is called deadbeat galvanometer. तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि eddy currents प्रोड्यूस हों और वो कॉइल को एकदम से रेस्ट पे लाएं, हम खुद चाहते हैं. So this is an application of eddy current, you can say. This is an advantage of eddy current. तो लिख लीजिए, what is deadbeat galvanometer? Deadbeat galvanometer is a galvanometer in which the coil instantly comes to rest. In which the coil instantly comes to rest as soon as current is switched off. In which the coil instantly comes to rest due to eddy currents या due to electromagnetic damping आप बोल सकते हैं. ठीक है, it's a galvanometer in which coil instantly comes to rest due to electromagnetic damping when the current is switched off या as soon as the current is switched off. There are more applications also, और भी applications हैं. So let us discuss more applications. Electromagnetic brakes. Electromagnetic brakes. हम ये electromagnetic term क्यों यूज कर रहे हैं? Who will tell me? Electromagnetic term क्यों यूज कर रहे हैं? Electromagnetic damping कैसे? फर्स्ट यूनिट में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था, थर्ड यूनिट में आपने मैग्नेटिज्म कर लिया. अब ये जो फोर्थ यूनिट है इसमें हम दोनों कर रहे हैं, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म. लाइक आई टोल्ड यू इंपॉर्टेंस ऑफ फैराडेज लॉ यस्टरडे, दैट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद टाइम मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, एंड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. ये उसकी इक्वेशन से कल हमने मेकआउट किया था, तो इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक, बिकॉज दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स ट्रेन्स के ऊपर, ट्रेन्स जो है उनमें यूज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स. तो उसमें क्या होता है कि जो व्हील्स होते हैं ना ट्रेन के, उसके एक्सेल के साथ एक ड्रम अटैच्ड होता है जो व्हील्स की मूवमेंट के साथ रोटेट करता है. अब जब ट्रेन को ब्रेक अप्लाई करनी होती है, अब मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस दैट मेटालिक ड्रम. तो उस मेटालिक ड्रम जो रोटेट कर रहा है, ऑलरेडी मोशन पहले से हो रही है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया जाता है एंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस उसकी वजह से, क्योंकि मोशन हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस एंड लार्ज एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मेटालिक ड्रम दैट स्टॉप द मोशन ऑफ मेटालिक ड्रम ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट. तो एकदम से वो जो ड्रम है वो रुक जाता है, उसके साथ ट्रेन रुक जाती है. So these are called electromagnetic brakes. All right. So here also the concept of eddy currents is used. Then next is induction furnace. So melt the metal pieces to form alloys. अब ये हमारा चैम्बर है, उसके अक्रॉस हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग, चलो ये चैम्बर है जिसमें मेटल पीसेस रखे हैं, उसके अराउंड एक कॉइल ऑफ वायर वाइंड कर दिया जाता है एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं. अब ये मेटालिक जो कॉइल है उसमें क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी चेंज जब होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उससे इसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे. लार्ज एडी करंट्स, दे विल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट करंट हैज हीटिंग इफेक्ट दैट विल मेल्ट द मेटल पीसेस एंड फॉर्म एलॉयज. तो इंडक्शन फर्नेस में भी एडी करंट हम चाहते हैं कि प्रोड्यूस हो, हम उसकी हीट को यूटिलाइज करना चाहते हैं. नेक्स्ट इज स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल. हाँ जी, हाँ कंटेनर, वही उसके अंदर मेटल पीसेस है ना,
कंटेनर कौन सा, वो भी मेटल का ही ले लेते हैं। हाँ, कंटेनर फिर कुछ सिरेमिक वगैरह का ले लेते होंगे, जो कीन्स होती हैं, जैसे आपने देखा ही है वो ईंटों वगैरह ब्रिक्स वगैरह की बनी होती है, ऐसे कुछ मटेरियल लेते होंगे जो खुद मेल्ट ना हो। अच्छा, अब स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल, अब यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि इसमें भी एडी करंट्स का कॉन्सेप्ट भी यूज किया जाता है। जो पॉइंटर है, अब क्या होता है कि इसमें एक हॉलो सिलेंडर होता है स्पीडोमीटर के अंदर, उसमें एक मैग्नेट डाल दिया जाता है। तो जब वो व्हीकल मूव करता है, वो सिलेंडर रोटेट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, मैग्नेट तो उसमें डाला ही हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है। तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि जो पॉइंटर है अकॉर्डिंगली मूव करता है, उसकी मोशन को जब रिटार्ड करते हैं तो पॉइंटर मूव करता है, हमें रीडिंग मिल जाती है स्पीडोमीटर। तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एडी करंट्स की जो आप भी बना सकते हो घर पे, जंपिंग डिस्क एक्सपेरिमेंट। जंपिंग डिस्क हम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कॉइल है वायर का, उसके ऊपर आपने एक आयरन का पीस रख दिया, ठीक है। तो जब आपने इसके में से करंट पास किया, ठीक है, इसको सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट किया, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो ये जो दूसरा मैग्नेट है वो जंप ऑफ हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट्स इन द मेटालिक। तो एडी करंट्स जब इसमें प्रोड्यूस हुई तो उससे क्या होगा, दूसरा मैग्नेट उससे रिपेल होकर नीचे गिर जाएगा। तो दिस इज जंपिंग डिस्क एक्सपेरिमेंट। इसमें एडी करंट्स का रिपल्सिव बिहेवियर यूज किया जाता है। आई कैन शो यू इन द लैब ऑल्सो, हमारे पास है ये apparatus, तो आई विल शो यू ऑल्सो। ऑलराइट, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडी करंट। बोर्ड में ये क्वेश्चन यूजुअली आ जाता है कि राइट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ एडी करंट। डिसएडवांटेजेस तो क्लियर ही हैं, एक तो ट्रांसफार्मर कोर तो बहुत विजिबल है, दूसरी भी आप कोई बता सकते हो, ये अनवांटेड हीट प्रोड्यूस करता है, तो हम वो नहीं चाहते। हाँ, एमसीक्यू टाइप में इनमें से ही क्वेश्चन निकल जाने हैं आपके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स किस प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं, तो आप बताओगे कि एडी करंट्स पे वर्क करती हैं, और भी कुछ हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बाकी कौन सा फिनोमिनन हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है, कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, क्या है, तो आप बता दो। हाँ जी, एमसीक्यू ऑनलाइन देखते हैं, बट दे हैव मेड इट कंपल्सरी। कंपल्सरी अगर कर दिया तो ऑफलाइन भी हो सकता है। अब तो इतना ऑब्जेक्टिव हो गया, अब तो आपके लिए वैसे ही काफी इजी हो गया। ऑब्जेक्टिव तो इजी होते हैं, फिर भी काफी कुछ अटेम्प्ट हो ही जाता है। हाँ, ओके, आई टोल्ड यू करंट का कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। व्हेन इंड्यूस करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन मेटल्स, देन द इंड्यूस करंट्स आर कॉल्ड एडी करंट। जब मेटल में प्रोड्यूस होती है उसको हम नेम दे देते हैं एडी करंट या फोकॉल्ट करंट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको गैल्वेनोमीटर का एग्जांपल दिया, इसमें हम कॉइल को मेटालिक फ्रेम के ऊपर क्यों वाइंड करते हैं, ताकि हम एडी करंट्स उसमें लेके आ सके। एडी करंट्स आएंगे तो वो उसकी मोशन को एकदम से रिटार्ड कर देंगे, जैसे स्विच ऑफ करेगा हम करेंगे तो फैन की तरह ऐसे ऐसे नहीं होता रहेगा, कॉइल एकदम से रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। गॉट दिस गितेश? So eddy currents are induced currents. Yes, They ma'am. are induced currents only. But जब मेटल में स्पेशली प्रोड्यूस होती है हम इनको नाम देते हैं एडी करंट। और वही प्रोसीजर है व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ मेटल चेंजेस विद टाइम, या फिर आप कह सकते हैं whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, metallic coil, हम यहाँ पे मतलब कुछ मेटल भी ले रहे हैं इसके साथ, तो फिर हमारे एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, लाइक यू हैव सीन इन ऑल दीज एग्जांपल्स। मैग्नेट तो लेना ही लेना है, मैग्नेट तो लेना ही लेना है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगे तभी मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी चेंज होगी। हाँ, उसमें उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गए। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, जैसे कि अब मेटालिक ड्रम लिया ट्रेन में, उसमें मैग्नेट आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना पड़ा, ठीक है।
उसमें मेटेलिक ड्रम था, वो रोटेट कर रहा है। नहीं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर देते हैं, जब ब्रेक लगानी है मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर दो। ठीक है, तो क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट और कोई डाउट यू कैन आस्क। ओके, देन लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस whole topic of induced currents, eddy currents. Next topic is self-induction of a coil. Self-induction of a coil. अब ये क्या होती है, ध्यान से समझिए. Suppose we are having a coil. ठीक है, ये एक वोल्टेज का सोर्स है और ये की हमने अटैच की है. ठीक है, एज वी प्रेस द की, जैसे ही की प्रेस करते हैं उसको ऑन क्लिक करते हैं. ऑन को कहते हैं एट मेक. व्हेन द करंट इज ग्रोइंग, उस सिचुएशन को कहते हैं एट मेक. एट मेक स्विच ऑन करते ही, जैसे ही हमने प्रेस किया, करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू सम मैक्सिमम वैल्यू. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन करंट. पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमारा कंडक्शन करंट की डायरेक्शन. तो जैसे हमने इसको स्टार्ट किया, करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया. व्हेनेवर करंट विल चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल स्टार्ट चेंजिंग. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल चेंज. तो इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा जो अपोजिंग नेचर का. तो इंड्यूस्ड करंट विल शो इट्स ऑपोजिशन. द कॉइल वांट्स टू रेजिस्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. तो वो उसको अपोज कैसे करेगा? बाय induced current will oppose the conduction current by flowing in the opposite direction. So induced current will start flowing in opposite direction. This is the direction of induced current. This is, हाँ जी, अपोज क्यों करेगा? ये हर कॉइल का नेचर है, इसकी कुछ इंडक्टेंस होती है, वही तो प्रॉपर्टी है. ये कॉइल की वही प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. जैसे एक आपका कंडक्टर है, उसकी प्रॉपर्टी है करंट फ्लो करेगा, उसको रेजिस्ट करता है. ऐसे कॉइल की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है, वो भी ऑपोजिशन शो करता है टू द चेंज इन करंट. हाँ, ये हर कॉइल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी टेंडेंसी रहेगी, वो उसको अपोज करेगा. ठीक है, सो दिस फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कॉइल दैट opposes the change in current flowing through it, that is called self induction. इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन. ठीक है, लिख लो डेफिनेशन सेल्फ इंडक्शन. हाँ, अगर इसकी दूसरी साइड देखें, हमने जब इसको स्विच ऑफ किया, हमने जैसे ही स्विच ऑफ किया, सर्किट ब्रेक किया, इसको ऑफ किया मींस उसको कहते हैं एट ब्रेक. Now conduction current is still flowing in the same direction, but now it is decreasing. अब कंडक्शन करंट मैक्सिमम से 0 हो रहा है, पर वो तो उसी डायरेक्शन में रहा है ना. Now induced current will flow in the same direction, trying to increase it. This is very interesting property. अगर कंडक्शन करंट इंक्रीज हो रहा है, इंडक्शन करंट will flow in the opposite direction, trying to reduce it. Opposition. But अगर कंडक्शन करंट डिक्रीज हो रहा है इन अ डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन ट्राइंग टू इंक्रीज इट. इट विल ऑलवेज अपोज. तो अब इंड्यूस्ड करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा था, ये उसको अपोज करेगा बाय फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. अब लिखिए, सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल. सेल्फ इंडक्शन is the property of a coil due to which it is the property of a coil due to which it opposes any change, चाहे वो increase हो रहा है चाहे वो decrease हो रहा है, दोनों इंस्टेंट्स पे होगा. due to which it opposes any change in current flowing through it, due to which it opposes any change in current flowing through it by inducing an EMF in itself. कैसे अपोज करेगा? by inducing an EMF in itself. अपने आप में इंड्यूस करंट, इंड्यूस EMF प्रोड्यूस करता है.
So this is the property of a coil due to which it resists any change in current flowing through it by inducing an EMF in itself. So it is found that current is directly proportional to change in magnetic flux. ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द करंट. पहले करंट फ्लो करेगा, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगी उसके साथ. And when we introduce the constant here L, this is called self-inductance. L is called self-inductance. जैसे रेजिस्टेंस था, कैपेसिटेंस था, अब इंडक्टेंस आ गई हमारे पास टर्म. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड coefficient of self-induction. It is called either the coefficient or inductance, self-inductance. देखिए ध्यान से, नीचे जो ऑपरेटर्स पढ़े ना बच्चों को बने हुए, उसमें वो एक कील सा लगा मोटा सा, उस पे एक छोटा सा मैग्नेट भी लगा हुआ जोड़ जाता है अलमीरा में नीचे. ओके, तो इस L को क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इफ करंट इज 1 एम्पियर देन L इज इक्वल टू 5. तो लिखिए डेफिनेशन. सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट चेंजेस थ्रू इट या व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू. लिखो डेफिनेशन सेल्फ इंडक्टेंस की. सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट चेंजेस थ्रू इट. चेंज होना चाहिए करंट, तो हमें वर्ड चेंज यूज करना पड़ेगा. व्हेन यूनिट करंट चेंजेस थ्रू इट. Excuse me, मैम. ये इसको इंड्यूस करंट अब रिड्यूस करने की कोशिश करेगा ना, जैसे ट्यूबलाइट का एग्जांपल आपको दिया था, उसमें चोक कॉइल होती है. हाँ, जब जो मैक्सिमम चल रहा है फिर इंड्यूस ईएमएफ 0 हो जाता है, फिर कुछ नहीं होता. ये सिर्फ 2 इंस्टेंस पे होएगा, जब हम ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, ऑन या ऑफ. हाँ जी बोलो शिवम. मैम ये सेल्फ इंडक्टेंस का जो हमने केस है वो हम सोलेनॉइड की एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं. बिल्कुल, कल हम डिराइव करेंगे, हम सेल्फ इंडक्टेंस और सोलेनॉइड डिराइव करेंगे प्रॉपर्ली. ठीक है, अच्छा ठीक है मैम. चलिए. ओके स्टूडेंट.